हाँ हाँ। नमस्ते प्रिय दोस्तों, आपसे सब कुछ मिलने से मेरे लिए बहुत खुशी है। मैं की कार्य बहुत साल पहले कर रहा था, अभी तो सब कुछ बुक किया, इसीलिए मैं अंग्रेजी में थोड़ा सा बात कर दूँ। आदिश अग्रवाल जी हमारे मार्गदर्शक और श्रद्धास्थान, इंद्रेश जी, सम्मानित मंच और भाई और बहन, बर्थडे भी है और इस जो छाया चित्रों के माध्यम से मोदी जी के जीवन का वृत्तांत एक नई पीढ़ी को, मैं कुछ युवा बच्चों को देख रहा था जो चित्रों को देख रहे थे। मंचासीन सभी श्रीमान इंद्रेश जी और आज जिनका I so happy I see my flag in this flag. Good idea, good concept, and I am seeing my president Mahmoud Abbas many photos with your prime minister. Happy birthday to your prime minister, and I hope India वो प्रदर्शनी क्या कभी आपने पहले देखी जो नरेंद्र मोदी जी के लिए जो आदिश अग्रवाल जी ने इतने फोटो लगाया 1000 के करीब, कभी आपने सर ऐसी प्रदर्शनी देखी? ऐसा है कि वन ऑफ द बेस्ट एग्जीबिशन जो भारत में और जगह जगह प्रदर्शनियाँ लग रही हैं, लोग मेहनत करके ले आई हैं। आदिश अग्रवाल जी को बहुत बधाई हो, उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई। सर क्या इस प्रकार की प्रदर्शनियाँ पूरे देश में नहीं लगनी चाहिए? लगती हैं, जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं लोग लगाते हैं। ताकि और दूसरी बात यह है कि जो लगाना चाहते हैं उन्होंने जरूर लगाना चाहिए। सर जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो इतना संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, इनके विषय में जो सब लोगों को पता लगना चाहिए। जैसे ये फोटो प्रदर्शनी से उनके जीवन की पूरी गाथा पता लगती है कि उन्होंने बचपन से लेकर अब तक कैसा संघर्ष किया। सर इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि उनकी संघर्षमय जीवन रहा है और इसलिए उस संघर्षों में से तप कर वो कुंदन बन निकले हैं, स्वर्ण बनकर निकले हैं। और मैं यही प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वह और अधिक प्रकाशवान हो। सर ये जो इतनी अद्भुत प्रदर्शनी लगाई आपने, जिसको देखकर मतलब कि जो भी यहाँ पर आया दंग रह गया, और आपकी जो कलेक्शन हजारों फोटो इकट्ठे करना, सर ये आइडिया आपके मन में कैसे है? क्योंकि 2014 में जब मोदी जी की जीत हुई, उसके बाद लंदन में हमारी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसमें इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस के प्रेसिडेंट, जिसे चीफ जस्टिस कहो, पीटर टोमका थे। यूनाइटेड किंगडम की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और कई मुल्कों के जजेस थे। तो उन्होंने पूछा था कि Mr. Agarwal, who is this Modi? How is he able to muster such support? In India, there used to be so much coalition governments. How a person coming from the state could become, not only become, get such large number of seats, parliament seat? Then I answered him, he is the best administrator. He knows how to rule. He knows what is to be done, what is the demand of the public. He is a grassroots leader. He worked as a volunteer of RSS. And then I thought it will be necessary to have a book, consolidated book, which will depict what Modi ji has done as the chief minister and what is his vision
and how he has brought a stable government. Because foreign investors want a stable government, foreign investors want a leader of a country should be firm and who has a vision. Because India is the biggest market and Modi ji wanted to have foreign investment. So I thought of bringing out a book on which showing that Modi ji has done a lot, his vision is good. So then I wrote a book on Indian Prime Minister with a British author. That book came in 2015 and second edition came in 2018. That 2018 edition was of 5 kilogram when Modi ji also said it is too heavy. So then we brought second book with American author published by American publication house, and those books we have covered most of half of these photos, and afterward last year after taking the clearance from PMO I arranged this international photography exhibition on Modi ji. Now this is containing 1300 photos, and these photos captions are in English, in Hindi and 9 other United Nations languages, so that the diplomats, foreign investors, foreign correspondents can know in their own language about the contribution of Modi ji. By this exhibition, a person, normally Indian knows that Modi ji is well respected in India. Chinese may be knowing that Modi is respected in China also, but they don't know how much respect he is having on any part of the world. In this big photo exhibition, you will see how Prime Minister Narendra Modi got rousing reception, not only at the airport, but when he came out, not Indian population settled there, but the local population of those countries. You must have seen how Bhutanese, how Chinese, how Japanese people were there in large number to greet Indian Prime Minister Narendra Modi. When we show that, when all business houses of the world are seen with Modi at one place, then these investors can't charge excessive amount from us. They can't ask us to sell our goods at a cheaper rate, because when they know India can sell their goods to in any part of the world, when they know Indian government of Modi can purchase goods from any part of the world, we will be not dependent on any one country. We are getting imports of our defense products from so many countries. Earlier we were depending only on Russia. Today every country wants, and they are giving at a cheaper rate, because when they know we can purchase, if they offer higher rates, then we will opt other countries' products. बिल आया, महिला आरक्षण का बिल आया, महिला आरक्षण बिल अब एक्ट हो गया है। हाँ जी। ये मोदी जी की ताकत है, जो कितनी सरकारें जो हैं, इसको जब पार्लियामेंट के अंदर बिल प्रोड्यूस टेबल करने के लिए कोई मंत्री जाता था, उसके हाथ से ये जो बिल फाड़ दिया जाता था। आज जब मोदी जी ने ये डिसीजन लिया तो कितने शॉर्ट टाइम में 5 दिन का सेशन लाया गया, उसके अंदर यूनानिमस, राज्यसभा में यूनानिमस और लोकसभा में केवल 2 वोट इस बिल के खिलाफ आए। आज कल राष्ट्रपति महोदया ने उसको कंसेंट दे दी है, और आने वाले इलेक्शन में, इन असेंबली इलेक्शन में भी आप देखेंगे 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। 2024 के इलेक्शन से सर, 2023 के इलेक्शन में भी होगा और 2024 के में भी होगा। सर पिछली बार 1400 से ज़्यादा बुक्स थी, फोटोग्राफी थी, इस बार तो G20 भी हुआ है, तो फोटोग्राफी सेगमेंट तो बड़ी होगी, तो
हाँ, ये अब 1500 हो गई। और जो अभी फॉरेन में लगेंगी, कल रशिया का डेलीगेशन आया था, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी है कि हम रशिया में भी इसको लगाएं। तो वहाँ कुछ फ़ोटो हमें उनके तरीके से कुछ हटानी, उन्होंने कहा कि कुछ फ़ोटो पे हमें ऑब्जेक्शन रहेगा और कुछ फ़ोटो हमें वहाँ के जो लोकल लीडर्स के साथ जो कल्चरल ट्रूप्स को प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं वो और हमको 100-200 बढ़ानी होगी। सर, अभी शाम तक और जी ने कहा है कि प्रदेश में दिल्ली से बाहर जाएगी, कितनी तैयारी कर रही है? अमेरिका जाएगी, लंदन जाएगी, दुबई जाएगी। रिक्वेस्ट हमारे पास जापान से भी आई है, परंतु दिक्कत हमारे पास ये है कितनी ज़्यादा फ़ोटो विदेश में ऐसी बढ़िया गैलरी में ये इंडिया की सबसे बड़ी गैलरी है जहाँ पर फ़ोटोज़ को डिस्प्ले करा जा सकता है। आपने देखा कि 4 लेयर में भी हमको ये फ़ोटो लगाने पड़े हैं। हाँ जी। ऐसी जगह वर्ल्ड में कहीं नहीं है, ये ललित कला एकेडमी में है। इसके लिए मैं कैलाश मेघवाल जी को धन्यवाद कर देता हूँ कि उन्होंने हमारे को स्पेशल इजाज़त दी यहाँ पर लगाने की। हमने कानून के तरीके से जो फीस होती है वो हमने दी है, परंतु ये ऐसी जगह है इसके बिना हमारा काम नहीं चलता था। ऐसे विदेशों में भी जगह देखी जा रही है, जैसे वो प्रॉपर जगह मिल जाएगी वो अन्य देशों में भी इसका डिस्प्ले होगा। सर, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू हुई है प्रदर्शनी और आज आपके जन्मदिन पर मना रहे हैं, ये इत्तेफाक इसलिए है कि यही जो गैलरी हमको हफ्ते हफ्ते के हिसाब से मिलती है। एक हफ्ते का, फिर दूसरा हफ्ता, फिर तीसरा हफ्ता, ऐसे हर हफ्ते के हिसाब से यहाँ गैलरी का अलॉटमेंट होता है। और एक हफ्ता क्योंकि यहाँ सारे कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स और हमारे जो जजेज आते हैं, फॉरेन के कॉरेस्पोंडेंट्स आते हैं, तो इसलिए 2 हफ्ते ये रीजनेबल समझा गया और इस तरीके से मेरा जन्मदिन भी इसमें ख़त्म होने में आ जाता है। आज हमारे साथ बाल किशन साहब हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपने भी एग्जीबिशन देखी जिसमें एक अद्भुत चित्र लगे हुए हैं, जी हाँ, इसके विषय में आपका? देखिए, मैं एक ही बात कह सकता हूँ, पूरा विश्व जिनको आज मार्गदर्शक मानता है, जिनको बहुत शक्तिशाली मानता है, जिनको युग दृष्टा के रूप में देखता है, आखिर उनका जीवन कहाँ से कैसे चला, क्या क्या हुआ, तो इसमें कर्मयोगी की भूमिका नजर आती है। एक बहुत ही अनुशासित व्यक्ति की भूमिका नजर आती है, एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति की भूमिका नजर आती है जो बहुत डट के होमवर्क करता है, फिर उसको बड़ा तरीके से एग्जीक्यूट करता है। जिस तरह आपने देखा G20 में भी अफ्रीकन देशों को पहले होमवर्क किया और 1 मिनट में सबको शामिल कर दिया। तो ये क्या उनकी एक विजन है, एक मिशन है। तो ये चीज़ें जब आदमी ये सब चीज़ें देख के जाता है तो उससे मिलता है कि क्या वहाँ पर किस ढंग से उन्होंने काम किया और हर जगह कितनी बड़ी सफलता मिली। तो इसमें तो जो प्रदर्शनी है ये सही मायनों में तो एक सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। और उसमें जो भी आया, बच्चा आया तो, बूढ़ा आया तो, जवान आया तो, वो यहाँ से कुछ न कुछ लेके गया है और उसको अपने जीवन में लागू करने से उसको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। सर, जैसे जो अभी मोदी जी का जो जैसे कहा कि एक बहुत बड़ा विजन है जी, अभी एक अब विशेष सत्र के भी जो महिला आरक्षण बिल पास किया गया। हाँ जी, सर, इसके बारे में क्या बोलेंगे? एक बात बताइए, यत्तर नार्यस्तु पूज्यते रमन्ति तत्तर देवता, ये मंत्र हमने पढ़ा है ना। तो आज मोदी जी जो मानवता की बात करते हैं, नारी के सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसको जब तक कानून का रूप नहीं दिया जाएगा वो चीज़ उसमें प्राप्त नहीं हो सकती। तो एक ही इसमें विजन है, बाकी लोग कुछ भी कहें, हिस्ट्री इस बात को याद रखेगी। नारी शक्ति को जो सम्मान और शक्ति के अंदर एक जागरण जो पैदा किया है वो इस महान व्यक्तित्व ने किया है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। और मैं समझता हूँ आज बदलते भारत की जो तस्वीर है उसमें ये कानून मील का पत्थर साबित होगा। सर, जैसे अभी एक बिल तो पास हो गया और
हमारे माननीय महामहिम जो राष्ट्रपति है उन्होंने भी इसके ऊपर स्टैंप लगा दी, मतलब कि अब ये कानून बन गया। तो सर ये कब तक लागू होगा? आपको लगता है कि 2024 में इसका लागू? देखिए एक बात बताओ, आप जो एक आधारभूत चीजें हैं उनको लागू की तरफ नहीं मोड़ना चाहिए। आपको एक ही बात मोड़ना चाहिए, भारत वो देश है जिसका 1/3 जो ताकत है वो कानून में भी महिला के पास है, और जननी होने के नाते अधिकतर ताकत, प्रेरणा स्रोत, शक्ति का स्रोत वो नारी है। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन कई जगह पर, जैसे मैं आपसे एक प्रश्न लेना चाहता हूँ। जी हाँ, जी हाँ। एक उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप हाँ, थोड़ा विस्तार में बताएं जी कि सर जैसे कि हमने देखा है कि कई महिलाएं जो है पूरा जीवन अपना जो है राजनीति में दे देती हैं जी, क्षेत्र में काम करती हैं जी, लेकिन होता ये है कि आखिरी क्षण के ऊपर जी, जो कोई सीट महिला के लिए आरक्षित कर दी जाती है जी, तो उसके ऊपर क्या होता है कि जो उसका पति होता है ना, जो काम कर रहा होता है फील्ड के बीच में, जी, जो नेता होता है, जो राजनीति से जुड़ा होता है, या कोई एमएलए कह लो या आप कोई पार्षद कह लो, या जिसकी ताकत है, वो अपनी महिला के लिए टिकट ले आता है जो कि योग्य नहीं होती, जिसने कभी क्षेत्र में जाकर काम नहीं किया होता। तो जैसे आरक्षण मिला 33% महिला को, बहुत अच्छी बात है कि आज पिछड़ी जाति की महिलाएं और पिछड़े प्रदेशों से भी जो महिलाएं, पिछड़े इलाकों से महिलाएं आएंगी, लोकसभा और विधानसभा के बीच में भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन यदि जैसे मैंने आपको कहा कि अगर अयोग्य महिलाओं को टिकट मिलेगी और जो योग्य महिलाएं जो क्षेत्र में काम करती हैं अगर उनको टिकट नहीं मिलेगी तो कैसे देश का विकास होगा? देखिए बात समझिए, वैसे तो जो पब्लिक चुन के भेजती है वो योग्य ही माना जाता है। दूसरा, मोदी जी का जहाँ भी प्रभाव है उसके अंदर ये कल्पना करना ही गलत है कि कोई पुरुष अपनी अयोग्य महिला घरवाली के नाम पर टिकट ले जाए, क्योंकि ये क्षण क्षण के हर चीज को विचार के बिल्कुल तोल के उसके बाद ही किसी को इस किस्म का अधिकार देते हैं। और ये पूरा उदाहरण है कि आज आपने देखा पिछले 70 के अंदर है विश्वास प्रस्ताव पर जो हमारी महिलाएं बोली, आपको पता है ना कितना बेबाक और कितना खुल के बोली। तो उनकी योग्यता पे शक करना, सुनीता दुग्गल और दूसरी महिलाएं बोली, हमारी वित्त मंत्री बोली, एक एक चीज ऐसे घट घट के बोली जिससे पता चला कि नारी शक्ति क्या है। अद्भुत प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें कि हजारों मोदी जी के जीवन के चित्र हैं। अगर हम देखें, अगर इन चित्रों को ध्यान से देखेगा तो पता लगता है कि मोदी जी ने जीवन में कितना संघर्ष किया, बचपन से लेकर आज तक के उनके सारे यहाँ पर फोटोग्राफ यहाँ पर लगे हुए हैं। सर इसके विषय में क्या कहेंगे? आपने कैसी अद्भुत प्रदर्शनी कभी पहले देखी? मोदी जी का जीवन ये देश के लिए समर्पित जीवन है, एक तपश्चर्या है। खुद के व्यक्तिगत जीवन की चिंता ना करते हुए पूरे देश का एजेंडा सामने रखकर वो जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री किसी ने नहीं देखा जिन्होंने अपने लाइफ में एक दिन की भी छुट्टी नहीं की। एक अपना एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जो बात बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। इस प्रकार का जिनका कार्यक्रम है, नीति और नियत जिनकी साफ है, ऐसे प्रधानमंत्री पर हमें गर्व है। और आज यहाँ पर जिस प्रकार की प्रदर्शनी का प्रस्तुति हुई है, इस ऐसे इनसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, लोगों तक एक मैसेज जाता है। सर जैसे जो हमारी युवा पीढ़ी है जिसके लिए बहुत जरूरी है बताना कि कैसे एक छोटे से तबके से एक व्यक्ति जो कि एक चाय का काम करता था और एक प्रधानमंत्री बन जाता है, और उन्होंने कितना संघर्ष किया। अगर जीवन में हर कोई व्यक्ति संघर्ष करता है तो वो भी एक छोटे से पद से ऊपर तक आ सकता है। इसके विषय में क्या? मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो देश का पर कैपिटा इनकम 80,000 रुपए था, जो आज 1,75,000 रुपए हो गया। एक गरीबी के अवस्था से ऊपर आकर समाज के लिए समर्पित आदमी क्या होता है, जिसका निस्वार्थ अपना एक ही एजेंडा होता है जो देश को आगे बढ़ाने का, वो क्या कर सकता है, क्या करिश्मा करके दिखाता है, वो मोदी जी ने करके दिखाया है। इसलिए पूरा देश आज उन पर गर्व महसूस करता है। कैसे ना सर, एक्चुअली में आपने देखा होगा कि लगभग 1500 मोदी जी के जीवन काल की यहाँ पर तस्वीरें हैं, जिनको देखकर उन्होंने क्या बचपन से लेकर पूरे जीवन में क्या संघर्ष रहा, इन तस्वीरों को देखने से सब कुछ मालूम चल जाता है कि वो कैसे एक चाय वाले से एक प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। सर आपको एग्जीबिशन कैसे लगा? बहुत बढ़िया, मैंने बहुत सुना था इसके बारे में
आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे इसमें शरीक होने का। मेरी बहुत दिली इच्छा ख्वाहिश थी इसमें आने का। मैं देर बेशक हुआ हूँ, लेकिन हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है देख के। और सही में मैं तो मोदी जी का बहुत ही मुरीद हूँ, बहुत कायल हूँ, उनकी पूरी जीवनी से बहुत प्रभावित हूँ। और रियली आई एम रियली टच्ड एंड वेरी हर्टेड टू सी ऑल दीज एग्जीबिशंस जो भी हैं, बहुत अच्छा है। दिस इज रियली दिस इज प्राउड फॉर नॉट ओनली द नेशन बट फॉर द इंडिया। This is the international field, really. So we all are very proud of him. इतनी अच्छी प्रदर्शनी यहाँ पे जो लगी है, ये सही में शहीद के लिए प्रेरणा के स्रोत है। जो भी यहाँ आएंगे, देखेंगे, अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे। और मैं तो खैर बिल्कुल, मेरा तो रोम रोम बिल्कुल पुलकित हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सिन्हा साहब, जैसे कि अभी आपने देखा कि इतनी फोटो एकत्रित करना, जो कि एक मतलब कि आसान काम नहीं था, एक बड़ा मुश्किल काम था कि इतनी तरह की फ़ोटो निकालने। और आज आपने देखा कि यहाँ पर कई विदेशी एम्बेसडर्स आए, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई और सब ने इस एग्जीबिशन की खुले दिल से तारीफ़ की। तो इस प्रकार की एग्जीबिशन जैसे जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो कि इससे प्रेरित होगी, जिनको मालूम चलेगा कि यदि वो भी जीवन में संघर्ष करते हैं तो वो भी किसी भी पद तक पहुँच सकते हैं। तो अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे सर? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा संघर्ष ही रास्ता होता है किसी भी सफलता के लिए। बिना संघर्ष के कुछ भी अचीव करना, कुछ भी हासिल करना मुश्किल है। और मोदी जी से अच्छा कोई उदाहरण पूरे विश्व में नहीं हो सकता है कि जहाँ से वो जहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल कहते हैं फर्स्ट से अस्त तक की बात है। और रियली हम तो उनके ज़बरदस्त मुरीद हैं, कायल। मैंने कहा देश को पूरा उन पर बहुत बड़ा ये है, सबको उन पर बहुत ये है। और आने वाले समय में हम लोग सबों का उनका साथ सहयोग रहे। ये पूरे देश और पूरे सबके लिए, पूरा इंटरनेशनल इनका बहुत बड़ा इनका योगदान है। और आज की डेट में मैंने तो कहा भी उनको तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। जिस तरीके से उनका योगदान रहा है, देश विदेश में ख्याति रही है, उनका नाम है हर एक फील्ड में, तो ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी सबके लिए। संगीता जी, सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि जो अधीश सी अग्रवाल जी के द्वारा यहाँ पर एक मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जो 17 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चली, जिसमें आपकी पूरी टीम की जो मेहनत देखने को मिलती है कि 13 दिन तक आप लोगों ने इसको बड़ी ही कुशलता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आज हमने देखा कि यहाँ पर 1500 जो मोदी जी के जीवन के चित्र लगे हुए हैं, जिसमें अगर आप देख सकते हैं कि बचपन से लेकर अगर हम बात करें तो अभी तक के उनके जीवन का कोई ऐसा चित्र नहीं होगा, कोई ऐसा पल, ऐसा मोमेंट नहीं होगा जिसका यहाँ पर चित्र ना हो। इसके विषय में आप क्या कहेंगे कि ये जो चित्र लगे हैं, इनसे लोगों को क्या संदेश मिलता है? थैंक यू सर, आपने हम सबको किया। लेकिन मैंने जो यहाँ चित्र देखे, उन चित्रों में जो मोदी जी का बचपन से लेके आज तक की जो जर्नी है, उसका पूरा इन चित्रों को देख के ही उसका विवरण पता चल जाता है। मैंने देखा जब वो स्टार्टिंग में चाय की दुकान चलाया करते थे, मेरे वो चित्र है वो मेरे को बहुत प्रेरित करता है। या जैसे जब वो पहले प्ले किया उन्होंने, वो चित्र मुझे प्रदर्शित करता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है। फिर तीसरा उनका एक 40x12 का जो घर था वड़नगर में, वो कि इतनी छोटी सी तंग गली में कहाँ से एक इंसान कहाँ से स्टार्ट होता है। फिर उनका आरएसएस का जो आरएसएस में जो उन्होंने अनुशासन सीखा, और वही अनुशासन उनके पूरी लाइफ में चला, क्योंकि जो आरएसएस में रहते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा अनुशासित हो जाते हैं और कम उसमें बहुत ज़्यादा करने की कोशिश रहती है उन लोगों की। कम खर्च में, कम वित्त मितव्ययता, अनुशासन प्रिय, इस तरह की आदतें उस बंदे में आ जाती हैं, जो कि होता है। हमारे मोदी जी भी जब बचपन से इस माहौल से उठे, तो हम जान सकते हैं कि जो बंदा एक गरीबी में चाय बेचने से लेके पीएम तक का सफ़र तय करता है, तो हमारे लोकतंत्र की ताकत ही कही जाएगी कि लोकतंत्र में हम कहाँ से कहाँ तक कोई भी पहुँच सकता है। उनका चाहे चट्टान पे एक चित्र था जिसमें वो चट्टान पे बैठे हुए योग कर रहे थे, कहीं मतलब मुझे ऐसे कई सारे चित्र हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं मोदी जी की जर्नी के। और ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ 17 सितंबर से क्या, उसके पहले से ही हमारी पूरी टीम, जैसे नीरज जी, दक्ष गोयल, पूर्णिमा गोयल, दीपमाला, मैं, अमित, विनय, दिवंश, मतलब बहुत सारे लोग, हम लोगों की जो मेहनत है पिछले कई महीनों से हम लोग कर रहे थे। और आदिश अग्रवाल की तो कहना ही दूर है कि वो तो ना उनके सुबह का पता होता है ना उनके रात का पता होता है, वो रात भर भी जग सकते हैं और सुबह भी चल। नीरज गौड़, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर, आपने ये जो एग्जीबिशन लगी, आपने देखा कि कैसे इसका आयोजन किया गया, कैसे तस्वीरें जो है बनाई गई, आपका शुरू से लेके
आज एग्जीबिशन जब ख़त्म हो रही है तब तक आपका पूर्ण योगदान रहा। जो ये सारी सर तस्वीरें निकाली गई मोदी जी के जीवन के विषय में, ये अजीत सिंह अग्रवाल जी के मन में ये आइडिया कहाँ से आया, कैसे कहाँ से वो इतने प्रेरित हुए मोदी जी से कि उनका जीवन काल ही बदल गया। और उन्होंने सारा मतलब कि हम कहें तो एक तरीके से जो अपना जीवन जो है मोदी जी के लिए ही झोंक दिया। आज हम देख सकते हैं कि उनकी इतनी ज़बरदस्त मेहनत है कि आज इस एग्जीबिशन के बीच में 1500 तस्वीरें लगी हैं जो मोदी जी के बचपन से लेकर और अभी तक के जीवन की पूरी गाथा को गाती हैं। देखिए, आदिश जी जो हैं वो राष्ट्रभक्त और देशभक्त इंसान हैं और वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमेशा एक आम आदमी की लड़ाई लड़ी है, एक आम एडवोकेट के दुख दर्द को उन्होंने सहा है और उसी तरह से वो उन्हीं लोगों को पसंद भी करते हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ज़मीन से जुड़ करके वो आगे बढ़ते हैं। जैसे आदिश जी विभिन्न पदों पर रहते हुए बार कौंसिल, दिल्ली बार कौंसिल ऑफ इंडिया और अब सुशोभित हो रहे हैं बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी भी एक फुटपाथ की ज़िंदगी से शुरू करके एक प्लेटफॉर्म से अपनी ज़िंदगी को शुरू करके आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आदिश जी का खुद का जीवन और मोदी जी का जीवन में बहुत सी समानताएं हैं। दोनों ऊर्जा से भरे हुए हैं, दोनों अनथक प्रयास करते हैं, अनथक मेहनत करते हैं और शायद उसी ऊर्जा को उन्होंने देखते हुए मोदी जी के प्रति ये सम्मान प्रकट उनके दिल में हुआ है। और ये प्रदर्शनी जो उन्होंने छाया चित्र प्रदर्शनी लगाई है बड़ी अभूतपूर्व है। हजारों इसके अंदर चलचित्र उन्होंने इकट्ठा किए, कहाँ से इकट्ठा किए प्रभु जाने, लेकिन बहुत ही दुर्लभ छायाचित्र हैं और इसके माध्यम से वो देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने स्कूल कॉलेजेस को इनवाइट किया, लॉ कॉलेजेस को इनवाइट किया और शायद इसी भावना को लेकर उन्होंने छायाचित्र प्रदर्शनी को आयोजन। पूर्णिमा आनंद और मैं ब्रिक्स कंट्रीज़ के साथ काम कर रही हूँ। हम लोग ब्रिक्स रिफॉर्म पे और ब्रिक्स महिलाओं के ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं और में भारत की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है और भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसमें बहुत सारी जातियां और जनजातियां हैं, लेकिन मैं समझती हूँ महिला की भूमिका हर जाति, हर जनजाति, हर स्टेट में और हर लेवल पे एक ही है कि उसे अपने परिवार को चलाना है, उसे अपने परिवार को बढ़ाना है, उसे अपने बच्चों का पालन पोषण करके उनको समाज का एक अच्छा नागरिक बनाना है। तो ये जो रिजर्वेशन की बात चली है वो देखिए एक रोल तो महिला का हमेशा रहा है, लेकिन कुछ पिछले वर्षों में या कुछ एक राजनीति परिस्थितियां कह लीजिए या पार्लियामेंट्री सिस्टम कह लीजिए, कुछ ऐसा रहा कि महिलाएं अपनी भूमिका उसमें पूरी तरह से निभा नहीं पाई। तो एक लंबे समय से ये बात चलती रही कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में जब हम इक्वल पोजीशंस पे लोगों को लेकर आए, SC ST बिल आया और इसके अलावा अलग किसानों के लिए बिल आया, हर तबके को ऊपर लाने के लिए एक आरक्षण का फॉर्मूला यूज़ किया गया। तो जबकि महिलाएं जो कि आधी जनसंख्या है किसी देश की, तो उनको आरक्षण में लाने के लिए पार्लियामेंट्री लेवल पे, लीडरशिप लेवल में लाने के लिए आरक्षण की बात आई, क्योंकि जो बहुत दूर की जो कि कहना चाहिए आदिवासी महिलाएं हैं या SC ST की महिलाएं दूर दराज के इलाकों में रहती हैं या हैंडीक्राफ्ट करती हैं या किसानी करती हैं, वो महिलाएं पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाई। तो उनके लिए आरक्षण लाने की बात बहुत समय से चल रही थी। हम इस बात के लिए खुशी प्रकट करते हैं कि पार्लियामेंट में इस वक्त महिला आरक्षण बिल की बात शुरू हुई है, लेकिन वो किस वक्त पास होके कब उसका क्रियान्वयन होगा ये अभी भी प्रशंसनीय है। आज हमारे साथ नरेंद्र खट्टर जी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आदिश जी ने ये जो कलेक्शन करके प्रदर्शनी लगाई है, इतनी बड़ी प्रदर्शनी एक ही सब्जेक्ट पे हमने नहीं देखी। अब से नहीं, शुरू से इन्होंने बचपन से लेके आज तक की इन्होंने कलेक्शन की है, कौन सा इंसिडेंस है, तो ये बहुत अच्छा लगा। इतनी मेहनत आदिश जी ने की, हमें उम्मीद नहीं थी। कहते ना घर की मुर्गी ताल बराबर, ये हमारे शहर के ही हैं, रोहतक से। अच्छा जी। हाँ, तो बहुत 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 अच्छा लगा। रमेश अत्री, मेंबर प्रदेश वर्किंग कमेटी। मेरा 53 साल का पॉलिटिकल करियर है। सेंटर में कांग्रेस में मैं रहा हूँ, पिछले 10 साल से मैं बीजेपी में हूँ। किसी भी प्राइम मिनिस्टर के, हालांकि देखो नेहरू फैमिली, गांधी फैमिली बहुत टाइम से लंबा टाइम रही है, लेकिन इतना हर स्टेप पे, हर मोमेंट के फोटोज जो है वो मैंने यहीं पे देखे।
वास्तव में आज एक्चुअली यही सेम प्रोग्राम हमारे रोहतक में था, पार्टी की तरफ से था, लेकिन हमारे नीरज गौड़ और अग्रवाल जी बोले आपको यहाँ आना है, तो मैं सारा प्रोग्राम छोड़ के आया। और यहाँ आके वास्तव में मैंने देखा कि बड़ी मार्वलस चीज़, बहुत कोई मुकाबला नहीं है इसका, कोई मुकाबला नहीं, बिल्कुल अद्भुत है। हमने कोई भी मुकाबला नहीं है। वैसे तो बोलने को कोई कुछ भी बोलते रहो, लेकिन ये चीज़ जो इन्होंने पेश किया अग्रवाल जी ने, तो सवाल ही नहीं उठता कहीं किसी के मिल जाए। इतनी इतनी मूर्तियाँ हर स्टेज की, यानी कि छोटे इतने से लेकर आज तक की जो है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर ये प्रदर्शनी है और मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं उन सब तस्वीरों को देख पा रही हूँ। तो मोदी जी जब 14 वर्ष के थे, मोदी जी जब से पहले देखिए जो उनकी पूरी आध्यात्मिक जो उनका सफर रहा है, वो उनकी जो यात्राएं रही हैं, ये देखिए ऋषिकेश में गंगा के तट पर सोचते हुए ध्यान में, तो ये बहुत ही रेयर ग्लिम्सेस हैं। हम लोग जानते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमारे चहीते प्रधानमंत्री जी को एक तरीके से, लेकिन उनका पूरा जीवन कैसा रहा है। एक कहा जाता है ना, माय लाइफ इज माय मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो ये तस्वीरें वो दिखाती हैं कि क्या कि हमेशा से और किशोरावस्था से आप देखिएगा कि 14 साल की उम्र से इससे हम देख रहे हैं कि हमेशा उनको एक ललक थी सार्वजनिक जीवन में काम करने की, सेवा भावना और एक जुड़ाव हर एक चीज़ से, वो तो दिख रहा ही है और मुझे लगता है बहुत ही अद्भुत ही है। स्वागत है चंद्रकांता जी आपका। बहुत बहुत आप इंटरनेशनल प्लेयर रही वॉलीबॉल के बीच में, राजस्थान से आप खेलते थे, आज आप यहाँ पर आई हैं। आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के पक्ष में एक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। आपको कैसा लग रहा है? जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर लाखों तस्वीरें लगाई गई हैं जो कि मोदी जी के बचपन से लेकर अभी तक की जीवन गाथा के बारे में सब कुछ इन फोटो के द्वारा अगर कोई इनको ध्यान से देखे तो सब कुछ पता लग जाता है कि मोदी जी का जीवन में कितना संघर्ष रहा है। तो इस विषय में आप क्या बोलेंगे? मैं यही कहूँगी कि जिन्होंने भी इतनी मेहनत की है, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनका जीवन जो एक आदर्श पुरुष है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी हस्ती है, जिन्होंने विश्व पटल पे हमारे भारत का नाम बहुत बड़ा रोशन किया है, हम उनके जीवन को शुरू से लेके अभी तक देख रहे हैं और आने वाले भविष्य में इससे भी अच्छे कार्य होंगे और इसमें बहुत सारी तस्वीरें ऐसी छपेगी जो कि एक ऐतिहासिक रूप लेगी। तो उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हम सौभाग्यशाली कि ये हमें देखने को मिला।